जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 525th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस. So today we are going to take a look at all the global markets. We will discuss what is happening with Nifty BankNifty, what are the future plans for this market, and all these analysis I will share. So welcome. Okay. Okay. So, guys, before I proceed further, let me just update you that the next training is scheduled on this weekend, which is March 5th and 6th, Saturday and Sunday. So, if you are interested, you can WhatsApp and you can register for this program. We are going to cover a lot of price action, technicals, and how I look at markets, how we think, and all those things. And upon registration, you will be added in our Telegram group for a period of 3 months. So, that will be uh, a very good thing for students because you definitely need some helping hand to navigate in markets and to learn all these concepts till you become confident. Okay, so what is happening? We have got some news that some diplomacy is going on between Russia and Ukraine, and probably Ukrainian president has agreed to meet the Russian side if they assure him of his security. Now, this news item came, I think, 30 40 minutes back, and that has propped up the prices. S&P 500 is up by 1.5%. European markets, they have recovered. Yesterday, they were down by more than 3%. And today, all these indices, they are scaling higher levels. So a good short covering is happening overall. These markets are going to remain volatile. I don't trust the news item that came because no president will go for a talk in such a situation, and no president will seek for a assurance of his safety. So I think it's some sort of gimmick, but nevertheless, technically किस तरीके से ये बाजार पोजीशन है, हमने क्या किया पिछले एक दो दिनों में, और आगे अब क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे. वीडियो आज थोड़ा लंबा होगा बिकॉज आई कुडंट टेक लाइव सेशन yesterday एंड आई थिंक इवन डे बिफोर yesterday. सो सबसे पहले बात करते हैं कि समथिंग ह्यूज दैट हैज़ हैपेंड रिसेंटली, और उसके बारे में जो है हमने बहुत ही कॉन्फिडेंटली एक ट्रेड कॉल भी दिया था, एंड दैट इज़ योर क्रूड ऑयल. सो MCX क्रूड ऑयल दोस्तों, अभी 4-5 दिन पहले इसमें जब करेक्शन आई थी 6,800 6,900 के रेंज में, आई थिंक दैट वाज थर्सडे और फ्राइडे. So I had given this buy call in our Telegram group, and I think it was this candle. Yes, it closed almost at day's low, but that was the confidence that I carried, that it is still ready for one more huge spike up towards 8,100 and 8,300. And what a crazy rally this has been, and I'm very happy to see that many of the students, they took this trade. And I think on Monday itself it tested 8,100 and most of them booked here. Some of them kept this trade, and today what a rocker. So crude oil, okay, crude oil, exceptional performance from our side. I don't think there's any YouTuber in India who has given such a massive moves in crude oil, natural gas, and all these MCX and Forex and everything, every asset classes we have covered. It has been a great success. So what is the future outlook of crude oil and how are things positioned? See, right now, I think the range, we are seeing a climactic range expansion. So whenever this happens for consecutive days, I typically avoid giving any view because uh, we can trade ourselves, but it is very difficult to guide others to trade in such a high volatile regime. सो आई वुड सजेस्ट क्रूड ऑयल इस समय जो है, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो बहुत ही कठिन होगा. ओके, एंड डोंट जस्ट अज्यूम दैट क्रूड इज गोइंग टू क्रैक. नो बॉस, इट इज नॉट गोइंग टू क्रैक. बिलीव मी और नॉट, क्रूड कैन go and make a new all time high on the international markets. ओके, बहुत लोग लास्ट टाइम भी यहाँ पे जब क्रूड आया था लगभग 7,600, एंड उस दिन इन्होंने शॉर्ट किया था. दे गॉट लकी फॉर दिस डाउन मूव, एंड
They predicted a top, but look where we are, almost 1,000 points higher between these two peaks. So don't take these markets very lightly. You have not seen any war like situation, and don't mess with MCX and Forex especially. क्योंकि देखिए इक्विटी मार्केट्स में एक वाजिब करेक्शन जो है मैं समझता हूँ हो चुका है. इक्विटी मार्केट्स में आई थिंक 16,200 एंड ऑल दीज दे आर प्रीटी ओके लेवल्स फॉर द टाइम बिंग. उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, बट जो मैं कमोडिटीज के ऊपर कह रहा हूँ इसे जो है सीरियसली लेने की जरूरत है. सो क्रूड में एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक देयर इज एनी एक्शनेबल ट्रेड. देयर विल बी लॉट ऑफ ह्यूज स्विंग्स ऑफ 500 400 पॉइंट्स, एंड यहाँ पे अब थोड़ा दिन इसे जो है हम टाइम देंगे. स्पेशली मैं इसे टाइम दूंगा बिकॉज वी हैव बीन नेलिंग डाउन क्रूड ऑयल सिंस सो मेनी मंथ्स नाउ, एंड द recent up move has been icing on the cake. So I'm taking a break from crude oil with a view that it has still lot of scope to run on the higher side, and I won't be surprised if crude oil makes a new all-time high on the international markets. My long-term crude oil chart suggests that crude still can go all the way till 11,800 on MCX. ठीक है, ये एक आखिरी पड़ाव है क्रूड ऑयल का. दिस इज द लास्ट रेजिस्टेंस जो इसने आज हिट किया है, लगभग 8,500 के आसपास आप कह सकते हैं. ओके, दिस इज द लास्ट रेजिस्टेंस दैट क्रूड ऑयल हैज. इसके ऊपर यानी 8,200 8,300 के ऊपर अगर MCX पे क्रूड ऑयल चलना शुरू करता है, then my next target will be 11,600, nothing short of that. Okay, so that will happen only in one case, and that is continuation of this ongoing war, and I don't see any respite coming from the war front. Yes, there may be some peace talks, ceasefire, blah blah blah, but we are not going to see any, reduction in the case of these casualties and all these things. I think the war will only become more and more intensified, and there will be bigger bombs dropped here and there, and this is basically the first, you can say, not round, you can say the, what you can say, the first seeds of World War 3, which will happen anytime. Not anytime, which will happen for sure. It is just a matter of time. It can happen within 1 month, 1 year, or probably 5 7 years, but this is the round one. ठीक है. सो ये है क्रूड ऑयल पे व्यू. अब देखते हैं एक बार ग्लोबल मार्केट्स में क्या पोजीशन है. सो ACWI इंडेक्स, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, ऑल दीज indices, they are still in the bear market territory, and today we are seeing some technical pullback. अगर करेंसी फ्रंट पे बात करें तो यूएस डॉलर में कोई भी एक्सेप्शनल मूव नहीं आ रही है. इट इज सिंपली गोइंग साइडवेज, एंड कपल ऑफ डेज बैक वी हैड अ गुड अप मूव, बट अगेन इट हैज बिकम साइडवेज. सो आई थिंक फ्राइडे के दिन जो है नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा. Probably it will spike up, or probably it will get some boost on that day. So as of now US डॉलर में कुछ खास व्यू नहीं है. अगर हम इंडियन NSE करेंसी की बात करें, ठीक है, अगर हम इंडियन करेंसी फ्यूचर्स की बात करें जो हम ग्रुप में रेगुलरली ट्रेड करते हैं, मेनी पीपल आर नाउ एक्टिवली ट्रेडिंग NSE फ्यूचर्स, तो इसमें जो है हमारा व्यू एब्सोल्युटली क्लियर है. वी आर शॉर्टिंग ऑल दी पेयर्स, और कल परसों जो है इसमें आज भी इनफैक्ट जो है एक ओपनिंग में ड्रॉप मिला था. अब क्या सिचुएशन है, लेट मी टेल वंस अगेन. सो USD INR जो है इस समय I am cautiously bearish. Okay, so I am expecting this range of 75 to 76.25 for the next couple of days. Then you have Euro INR. So इसको मैंने पहली शॉर्ट करने को कहा था. ये ऑलरेडी बहुत अच्छा 70-80 पैसे का फर्स्ट एक ड्रॉप हो चुका है. सो राइट नाउ इसमें अब कोई शॉर्ट नहीं है. थोड़ा सा ये बुलिश मैं देख रहा हूँ, इन द सेंस दैट 30-40 पैसे थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, एंड अगेन इसे वापस शॉर्ट करना है. सो यूरो INR को हमें जो है शॉर्ट साइड ही रखना है. अभी टेक्निकल एक छोटा सा अप मूव है. ओके, एंड इसका जो एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस होगा वो समवेयर यू कैन से 85.8 से लेके आपका 86, दैट इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस. GBP INR की अगर हम बात करें तो इसमें एक और राउंड का ड्रॉप हो चुका है.
अब मैं समझता हूँ इसे जो है शॉर्ट साइड में नहीं करना चाहिए. 100.5 इज द बेस एंड आई सी एटलीस्ट 101.5 टू 102. रेंज के दूसरे साइड में जाएगा तो शॉर्ट करना है, रेंज के पहले साइड में आएगा तो लॉन्ग करना है. JPY INR ये क्लियर कट शॉर्ट है अभी, इसमें भी एक दो राउंड्स हो चुके हैं एंड स्टिल इट इज ऑन द शॉर्ट साइड. 66 के नीचे तक जो है इसे शॉर्ट करना है. 40-50 पैसे का आपका स्टॉप लॉस होगा हर ट्रेड पे. सो दैट्स द अपडेटेड व्यू ऑन द फॉरेक्स फ्रंट. फ्राइडे के दिन जो है नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा, दैट विल बी वेरी क्रूशियल. लेट अस टॉक अबाउट योर गोल्ड एंड सिल्वर. सो गोल्ड इस समय जो है 500 पॉइंट नीचे है. गोल्ड इज स्ट्रगलिंग अराउंड 52,000 लेवल. आई थिंक गोल्ड हैज ऑलरेडी डन अ ग्रेट मूव. मैनी पीपल स्टार्टेड टू शॉर्ट गोल्ड और उस टाइम भी मैंने मना किया था कि गोल्ड को शॉर्ट मत करो इन अ वॉर लाइक सिचुएशन, स्पेशली व्हेन इट इन्वॉल्व्स रशिया, बिकॉज जब सैंक्शंस वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं देन सेफ हेवन बाइंग जो है ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है. सो आई थिंक गोल्ड इज बेस्ट अवॉइडेड एट दिस टाइम. इट इज़ एट अ वेरी सॉलिड रेजिस्टेंस. अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होता तो डेफिनेटली मैं यहाँ से शॉर्ट करता, बट राइट नाउ आई थिंक गोल्ड को जो है छोड़ देना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी रिस्की टू शॉर्ट एंड टू गो लॉन्ग. ऑन द अपसाइड अगर गोल्ड 2-4 दिन और सस्टेन करता है 51,600 के ऊपर, okay, then I think gold will shoot 53,600, which is 2,000 points on the higher side. सो गोल्ड में 2,000 पॉइंट की बढ़त अभी भी हो सकती है. अगर कोई भी सिचुएशन एस्केलेट होता है तो बहुत ही आराम से ये चीज़ शूट अप कर सकती है. सो यहाँ पे गोल्ड पे मैं कोई ट्रेड नहीं दूंगा. बाकी कॉपर वगैरह ऊपर है, मेटल्स तो अपसाइड ही जाएंगे वॉर लाइक सिचुएशन में. सो एवरीथिंग इज फाइन ओवर देयर. चलिए क्रिप्टो पे नजर डालते हैं. सो फाइनली क्रिप्टो में एक जान आई है. बिटकॉइन हैज फाइनली स्टेज सम गुड कम बैक एंड ये जो है थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है इस समय. फॉर द टाइम बिंग स्टिल 46,000 रेजिस्टेंस है और नीचे में आपका 36,000 सपोर्ट है. ओवरऑल अभी भी मैं इसमें कोई खास ट्रेंड वगैरह नहीं देख रहा हूँ. ये सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले है. 46 पे बुक कर सकते हैं, नीचे में बाय कर सकते हैं. दैट्स इट. कोई मेजर इसमें अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है. बट आई थिंक विद दिस लेग ऑन द हायर साइड, maybe in coming days we will see a resolution in terms of trend. So as of now it's just a support resistance play, 46 to 36 range with a potential bottoming sign over here. बट अगर मैं ट्रेंड के एंगल से कहूँ तो अभी थोड़ा सा जल्दी होगा. सो ट्रेंड के एंगल से अभी इसमें बात हम नहीं करेंगे. ओके, इथेरियम की बात करें तो ट्रेडिंग एक्शनेबल ट्रेड जो है इथेरियम में मिलेगा. अभी 3200 इथेरियम को जाना चाहिए, $200 और ऊपर जाना चाहिए. सो इथेरियम बेसिकली जो है इस एक छोटे से स्ट्रक्चर में लॉक हो जाएगा समवेयर हियर. सो वी विल गो 3200. प्रॉब्ली एक और ड्रॉप आ सकता है और मैं इथेरियम को फिलहाल इस एक ट्राइंगल में देख रहा हूँ. इससे ज़्यादा मैं कुछ इसमें इस समय नहीं कह सकता. ठीक है. सो दैट्स ऑल ऑन दीज मार्केट्स. लेट अस वेरी क्विकली गो टुवर्ड्स और इंडियन मार्केट. सो एक बार हम देख लेते हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स कहाँ है. सो मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, दे आर डिफेंडिंग द रीसेंट बॉटम्स एंड आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा खासा कैपिचुलेशन जो है हो चुका है. दोनों ही इंडेक्स में आई थिंक एक बहुत ही सॉलिड यहाँ पे कैपिचुलेशन हो चुका है. बिगर पिक्चर क्या है? सी बिगर पिक्चर अगर आप 4-5 महीने से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है बिगर पिक्चर क्या है. See, if you talk about the mid cap index, so we have made a significant top over here, and 2008 के पीक से अगर हम देखें तो we tried to break above this level, but 4 months and we could not produce any continuation, and as a result of which we have started this correction. So I think ये अभी भी sell on rise रहेगा मंथली चार्ट्स पे, बट डेली चार्ट पे आई थिंक some significant bottom has been made, and I don't see newer lows coming in these indices unless you have something fresh on the war front. Okay, सो पोजिशनली ये मार्केट्स अभी भी एक बेयर टेरिटरी में ही रहेंगे. रैलीज वगैरह आएंगी बट स्टिल आई डोंट सी दीज मार्केट्स गेटिंग आउट फ्रॉम द बेयर क्लचेस एनी टाइम सून. मैंने 2 डेट्स के बारे में बात करी थी पहले. एक है 10 मार्च के आसपास, ठीक है, 10th March, 8th March, somewhere over here, and then again there is something around 10th of April. Okay, so 2 scenarios I had forecasted before. Number one, possibly we bottom around 10th of March and we start a very nice bullish move, or
we bottom on or around 10th of April, and then we start a very good move. ठीक है, तो इस समय I would like to go with this option. Okay, I still feel that there is one more month of pain left in terms of price and time when it comes to Indian stock market. ठीक है, आई एम नॉट कंसर्न विद रशिया यूक्रेन, वहां जो होना है वो तो होगा, बट आई थिंक यस 10th of March के आसपास से जो है आई थिंक वी आर गोइंग टू सी वन गुड काउंटर रैली, बट अगेन दैट विल बी पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस. तो जैसे ये था, ठीक है, वैसे ही समथिंग लाइक दिस शुड हैपन, एंड अगेन देर मस्ट बी वन फाइनल, वन मोर राउंड ऑफ correction, possibly that will mark the price and time bottom somewhere around mid April, 10th of April. Okay, so इस चीज़ पे हम जो है डिस्कशन करते रहेंगे. निफ्टी के चार्ट को देखते हैं कि निफ्टी में अभी तक किस तरीके का व्यू रहा है और कहाँ है हम इस पूरे जाल में. सो लेट मी जस्ट वेरी क्विकली explain that we are watching this fractal since many months now, and we have completed this leg, we completed this leg, we completed this, we have done this, and then we were supposed to make a minor new lows. Okay, and we have done that, we have made a minor new low, and now I'm looking at some sort of corrective rally in this format. Okay, so possibly I think we have made a good bottom over here that may be retested. वो हो सकता है, I'm not sure about that, but overall I think this 16,000 is a done deal for the time being, and I think sooner or later we will digest the negative news and we will scale up to stage a counterback rally, which should go till you can say 17,375. Okay, so you can say from 16,200 to 17,375 there is one good up move that is due, that is going to come, uh, and again thereafter I see one more round of a sell off, which should take Nifty towards 15,800. That should mark the full and final bottom, and possibly then we will start some nice final lap on the higher side. बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं. फिलहाल हम इसी मार्केट फ्रैक्टल को लेके चलेंगे, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, और यहाँ भी आप देख सकते हो कि आफ्टर दिस वन स्टेज ऑफ रैली एक फाइनल एक और कैपिचुलेशन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्राइस डैमेज नहीं होता है, बट बिकॉज ऑफ दिस टाइम कंजम्पशन मोस्ट ऑफ द बुल्स, बेबी बुल्स जो है ये निकल जाते हैं, एंड देन you start to see the new leg of the rally. Now, if you ask me where we are in the larger scheme of things in terms of क्या बुल मार्केट खत्म हो चुका है और बेयर मार्केट में हम आ चुके हैं, अगर हम इसकी बात करें तो आज मैं थोड़ा सा आपको बस एक एग्जांपल दूंगा कि वेयर वी आर इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स. So I believe we have made first top here. Okay, so I think we have made first top. मेरा स्टाइल अलग है बुल और बेयर मार्केट को देखने का. मैं जो है सीक्वेंस में मैं देखता हूँ, मैं कोई एक बॉटम या एक टॉप नहीं देखता हूँ, मैं एटलीस्ट एक से तीन टॉप्स वगैरह देखता हूँ मैं. ठीक है, सो आई थिंक वी हैव मेड द फर्स्ट टॉप हियर एंड वी आर अंडरगोइंग दिस करेक्शन एक्सेट्रा. ठीक है, ये करेक्शन वगैरह जो है ये हम देख रहे हैं, एंड जब भी ये खत्म हो जाए इसके बाद वी कैन हैव वन मोर राउंड ऑफ माइनर न्यू हाई, एंड अगेन देयर विल बी अ सीरियस डिक्लाइन. तो एटलीस्ट दो लेग तो मैं देख रहा हूँ इस बाजार में कि अगर ये बाजार यहाँ से फाइनली बॉटम होके अगर ये एक न्यू हाई की तरफ जाता है तो वो भी सस्टेन नहीं करेगा. अगेन दैट विल बी यूज्ड एज अ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, इस तरीके से तो मुझे इस तरीके से ये बाजार दिख रहा है कि बाजार जो है प्योर ट्रेडर्स हो चुका है, और जो लोग टेक्निकल ट्रेड करेंगे आई थिंक उनके लिए आने वाले 2 साल तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं. ठीक है, सो ये एक लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में है. अगर मुझे एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना हो तो मैं समझता हूँ हम यहाँ हैं इस वक्त. ओके, हम यहाँ पे हैं, एंड वेरी सून within next 30 days we should do some significant bottom and then start the next leg of rally, and again we will see a nasty correction. चलिए आते हैं कि इस समय क्या सिचुएशन है. So here we have a triple bottom breakdown, and since then market is trying to negotiate with the bears. चैनल की बात करें तो चैनल बॉटम जो है हिट हो चुका है, जिसके बारे में पहले हमने
एक्सप्लेन किया था दैट वी विल मूव इन दिस चैनल, एंड दिस इज वेरी नाइस करेक्शन ओवर हियर. सो आई थिंक मार्केट आज एक इनसाइड बार है. आज बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट बॉटम पे जो है मैंने लॉन्ग कॉल भी दिया था, पहले एडवांस में दे दिया था कि कैसे वो बॉटम आउट होगा, एंड एवरीबडी हैज सीन दी रैली इन बैंक निफ्टी. ग्रुप मेंबर्स, अगर आपने बैंक निफ्टी में रैली देखी है तो लिख के बताइए कि आपने देखी है कि नहीं देखी है. सो टुडे वी हैव मेड अ इनसाइड बार and yesterday we had outside bar. So what is this? This is IOI, which means that we should move higher, at least till here, to fill this gap, which means very great chance, very good chance, I would say, that holding 16,300 level, we are going to see 17,100. Okay. Now, it may happen in one candle, it may happen in two candles, it may happen in two waves. That is least of my concern. What am I concerned with? That 16,300 is a floor for now, 17,100 is a ceiling for now, and I will be a buyer in this market, not a buyer from a bull bear perspective, only technical perspective. ठीक है, इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही मैं कहूंगा बाय, तो कम से कम 10 दर्जन लोग जो है फिर सारा घर बेच के बाय करने लगेंगे. सो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि मैं इस मार्केट में अभी भी बेयर हूं, और काफी दिनों तक मैं बेरिश रहने वाला हूं. मैं पिछले 4 महीने से सिंगल बेयर स्टैंडिंग इन दिस मार्केट, एंड still I'm a bear. But as I said that these markets are going to give you super duper swings. तो आई थिंक अभी एक छोटा सा उस स्विंग जो है का समय है, और ये इस तरीके से एक बड़े चैनल के अंदर हम एक माइक्रो चैनल में हैं. ठीक है, इस तरीके से. और अगेन यहाँ से 17,100, 17,200, 300, समवेयर फ्रॉम हियर अगेन वी शुड सी दैट 15,800 ड्रॉप towards the 10th April. That should be the full and final bottom. ठीक है. अगर मैं प्राइस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स के साथ अगर चार्ट दिखाऊं तो थोड़ा सा मेस्ड अप आपको दिखाई देगा, बट we are here, we are in this declining pitchfork, and I would become a very good bull if we can retest this level by 10th of April, somewhere here. Okay, so I think if we can do something like this, okay, if we can do something like this, then I will be very happy as a technical trader. And I think at this level, at this price and time point here, I would definitely like to take huge long bets for a very strong move towards 19,200 or 19,600 somewhere by June or July, post which again there has to be nasty करेक्शंस. ठीक है, सो ये सिचुएशन है, इसका आप फोटो भी ले सकते हैं. हो सकता है इस तरीके से मार्केट आउटप्ले हो, तो अगर आपके पास फोटो होगा तो शायद आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है. ठीक है, रही बात कि अब कल के दिनों में क्या होगा, अभी तक मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बता रहा था क्योंकि हम 2-3 दिनों से नहीं मिले थे. सो दिस ऑरेंज लाइन इज द 233 मूविंग एवरेज. Many people they tell you to use 200-day moving average. I don't use that. I use 233, and it is because of this slight change that I never changed my view, because 200 DA में थोड़ा ऊपर था तो काफी लोगों को यहाँ पे लगा कि मार्केट जो है अब 200 DA में टेस्ट हो चुका है, बट नो, मार्केट हैड टू टेस्ट दिस मूविंग एवरेज एंड दैट इज व्हाई इट ड्रॉप्ड. फाइन. सो अब कल के लिए लेवल्स क्या होंगे इस मार्केट में, बहुत ही सिंपल शब्दों में हम डिस्कस करते हैं. सी, आज जो है इनसाइड डे बना है, ठीक है, विच मीन्स दैट today's candle range is inside the range of the previous day candle. So अब कल के लिए हमारा गेम प्लान क्या होगा. नंबर 1, I would suggest if there is a gap down opening or if there is a gap up opening, my bias for tomorrow will be, initial bias will be on the long side. Okay, now subject to any unprecedented thing happening overnight. अगर भाई रात को अगर 2-4 न्यूक्लियर छूट गए तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लॉन्ग कुछ होगा नहीं. ठीक है, अगर रात को कुछ और थोड़े बड़े बम फूट गए तो भी ये चीज होगा नहीं. तो दैट इज, आई थिंक, उतना कॉमन सेंस सबके पास होना चाहिए. सो गिव और टेक, कोई अगर बहुत बड़ी ऐसी कुछ चीजें नहीं होती, देन आई थिंक मार्केट
इज रेडी फॉर दिस मूव, जैसा मैंने बताया। और मैं एक बड़े पर्सपेक्टिव, मैं कोई मॉब लेवल के हिसाब से काम नहीं करूंगा, मैं एक पर्सपेक्टिव लेके चलूंगा कि 16,300 मेरा जो है बेस है और 17,100 मेरा जो है ये टारगेट है, ठीक है। अब इंट्राडे वाइज जो है टेक्निकल ट्रेडिंग करेंगे। सो एज यू कैन सी दिस इज द ब्रेकडाउन लेवल। सो आई थिंक फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 16,900, 16,800 एंड देन 17,100। सो इस रेंज में हम लॉन्ग साइड में ट्रेड करेंगे। अगर मुझे प्रिसाइसली कोई मॉब लेवल इस टाइप का कुछ देना पड़े तो आई थिंक दैट इज वेरी इजी। And for tomorrow's session, you can very easily see that 16,550 is going to be the make or break level. Now, why particularly this level? Because if you see the opening candle, bottom is at this level, then here we have one bottom, again one bottom, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम स्ट्रक्चर बनता है इंट्राडे। ट्रिपल बॉटम अगर दोस्तों अगर रेजिस्टेंस कट नहीं करता है तो 100 में से 100 बार ये सपोर्ट ब्रेक करेगा। दिस इज द इनिशिएटिंग कैंडल फॉर बेयर मूव, ये यहाँ बॉटम बनाता है, ठीक है। अगेन ये सपोर्ट टर्न इनटू रेजिस्टेंस, वन मोर ड्रॉप, डबल बॉटम स्ट्रक्चर एंड देन ये फाइनली ब्रेक होता है। यानी आज की जो इंट्राडे जो गतिविधि है, ठीक है, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन जो है इस चैनल के बाद अगर ये नीचे आता है तो इट विल बी इनिशियली इट विल बी बाय ऑन डिप अप्रोच। सो दैट इज व्हाई my make or break level for tomorrow session will be 16,550, and my first target will be to take out the highs of this, which is nothing but your 16,680, 16,680, and then my second target will be 16,750, एंड फाइनल टारगेट ये गैप फिलिंग जो है आपका 16,850 वगैरह जो है ये होगा, ठीक है। सो दीज आर द थ्री लेवल्स ऑन द हायर साइड। 16,550 के नीचे जो है मार्केट थोड़ा सा बेरिश मोड हो सकता है, प्रॉब्ली इट कैन गो एंड टीज दिस डबल बॉटम, ये बॉटम 1 ये बॉटम 2, एंड इसको जो है थोड़ा सा टीज करके थोड़ा सा फ्लश करके अगेन इट कैन कम बैक। अगर ऐसी एक्टिविटी होती है तो अगेन यहाँ पे आप लॉन्ग करिए और एक सिग्निफिकेंट लेवल को या प्रेफरेबली 16,300 को भी आप यूज कर सकते हैं। एंड इफ वी गेट सच अ स्ट्रक्चर देन डेफिनेटली इट विल रॉकेट all the way till 16,900. So tomorrow being weekly expiry, watch for such price action, क्योंकि लास्ट का जो 30 मिनट्स होगा दोस्तों ये एकदम रॉकेट स्विंग होगा। either it will rocket up or if it is trading at higher levels it can rocket down. So बहुत ही इंटरेस्टिंग कल का दिन है and that's the plan going forward for tomorrow's session, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे and then we will take some stocks. So बैंक निफ्टी today what a spectacular rally, और आज जो है इसमें क्यों मैंने यहाँ पे लॉन्ग सजेस्ट किया। ग्रुप मेंबर्स अगर आपने बैंक निफ्टी में पैसा बनाया है तो आप लिख के बताइए। सो दिस वाज द बॉटम मेड, ठीक है, और इसमें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। जिन्होंने भी मेरी ट्रेनिंग अटेंड की उन्हें पता है कि मेरा काम करने का तरीका बड़ा ही सिंपल और एक ही तरीके का मैं ट्रेड सेटअप लेता हूँ, ठीक है। सो द लॉजिक इज वेरी सिंपल बॉस, दैट आपको याद होगा उस दिन मैं कंसेंसस बता रहा था कि मार्केट ने एक टेक्निकल बाउंस क्या किया और जितने भी भारत के जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उन्होंने बॉटम कॉल कर दिया। सो आई सेड दैट्स द मोस्ट फुलिश थिंग टू डू, ठीक है, क्योंकि बॉटम तभी बनेगा या तो ये फ्लश करे या फिर ओके ये डबल बॉटम वगैरह कुछ बनाए। सो today the plan was very simple, that once you flush this and once you come above you have to go long and keep some lower levels as a stop loss and then wait for the higher levels to come. So obvious है इंट्राडे में ओपनिंग कैंडल को टीज करेगा, सो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड हो गया, ह्यूज अप मूव, राइट, एंड पोजिशनली इसको जो है मैंने कैरी किया है बैंक निफ्टी लॉन्ग्स को, एंड पोजिशनली आई एम एक्सपेक्टिंग दिस एंटायर गैप टू गेट फिल्ड or maybe even till this gap. Now, having said that, that doesn't mean that Bank Nifty will not fall further. Okay, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा मैंने बताया कि मैं अभी भी बेयर हूँ इस मार्केट में, and I am the only bear standing right now, and only Putin is on my side. Now, why I went long and why I'm still a bear, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सो पहले हम देखते हैं कि बॉटम्स कैसे बनते हैं, ठीक है। सो नंबर वन रूल होता है especially when VIX is trading at a higher level and you have a lot of news flow. So bottoms will always be made when there is a first rally which will be a failure
to make a significant second bottom on a very nice divergence. Okay, and couple of consolidation, दैट्स इट। ये 1 2 3 4 का ये एक स्टेप होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि ट्रेंड वाइज आई एम स्टिल बेयर, ट्रेड वाइज आई एम माइक्रो बुल, ठीक है। सो ये कुछ मैं ऐसा देख रहा हूँ, एंड प्रॉब्ली आफ्टर दैट अगेन वी माइट ड्रॉप टू मेक दिस perfect bottom later on, and then probably good up moves will come, ठीक है। सो इसलिए टेक्निकल ट्रेड लॉन्ग था, तो इसलिए हमने लॉन्ग किया। अब ऊपर जाने के बाद वापस से जो है शॉर्ट करेंगे। कहाँ तक जा सकता है ये अप मूव, अगर ओवरनाइट कुछ बड़ी चीज नहीं हुई, yesterday if we can manage to cross 36,000, sorry, tomorrow if we can manage to reclaim about 36,000 or 35,900, okay, then what will happen is we would have reclaimed the 233 moving average, and that can still keep bank nifty into the higher territory, and this up move can go all the way till 37,200, okay, maintaining the bearish trend intact, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से मैं देख रहा हूँ। Okay. Now, overall speaking, even if Bank Nifty drops, I think unless something major happens, I don't think that Bank Nifty is going to trade below 34,000, 400, 34,500, broadly speaking. I think that is a very good place. I think ये जो पूरा एक zone है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो आई थिंक इवन इफ दैट हैज टू ब्रेक, इवन इफ दिस हैज टू गिव अवे डिसाइसिवली, यानी 34,000 जो है बहुत ही सॉलिड है, 34,500 ये पूरा जोन जो है ना बहुत ही सॉलिड जोन है। सो इफ दिस हैज टू गिव अवे, ओके, आई थिंक फॉर दैट इट नीड्स टू कम वंस हियर, एंड probably in the next round, it can crack, ठीक है। So I think for the timing 34 is very good base, and I'm expecting some good up moves to come, and then again there has to be bearish moves, okay। कल के लिए किस तरीके की हमारी strategy होगी, so I think a lot will depend on the opening, but still व्यू सेम होगा। अगर हमें नीचे के भाव मिलते हैं तो जो है हम बाय साइड में ही रहेंगे, ठीक है। कोई मॉब लेवल मैं नहीं दूंगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि रेंज बहुत बड़ा है। सो अगर मैं कोई स्पेसिफिक लेवल दूंगा तो शायद उसे आप यूज नहीं कर पाओगे ठीक से, इसलिए मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया, बड़ा पर्सपेक्टिव बता दिया, और उस हिसाब से जो है आप अगर कोई ट्रेड दिखता है तो आप ले सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल ऑन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्रंट। वन गुड थिंग I liked about today's session in the Nifty futures is this thing. Okay, there was a heavy sell-off here, somewhere just at 12. Okay, and the way it has conquered, very nice slope, very nice, volumes that came later on. Look at the Bank Nifty, lot of good spike in the volume. So ये काफी encouraging sign है, ठीक है, nice. So ये सारी चीजें ठीक है। अब let us see whether we are able to break on the higher side, or we are simply going sideways to make a bear flag and again drop. So इसलिए थोड़ा सा careful भी रहना जरूरी है। I think that's all I have. Yeah, okay, चलिए, we can take some stock queries। अगर कोई query है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को यहीं पे समाप्त कर सकते हैं। और चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आजकल कमेंट्स नहीं आते हैं तो मैं भी नहीं आता, और आने वाले जो महीने हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो अगर सपोर्ट मोटिवेशन मेंटेन रहेगा तो हम आते रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। लेट अस टेक सम स्टॉक क्वेरीज, एंड गाइस नेक्स्ट ट्रेनिंग इज ऑन दिस वीकेंड, March 5th and 6th। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। चलिए कुछ स्टॉक्स की तरफ बढ़ा जाए। सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा हिंडाल्को। वाई? क्योंकि ये इकलौता एक स्टॉक है जिसके ऊपर हम बहुत पहले से बुलिश हैं, और इसे हमने हमेशा बुलिश साइड में ही मेंटेन किया था। इवन इन दिस करेक्शन, इफ यू रिमेंबर, द आइडिया वाज वेरी सिंपल कि जिन्होंने पहले नहीं बाय किया है, कोई भी करेक्शन आती है तो बाय करो। 590 मेरा टारगेट था, इसको भी इसने क्रॉस कर लिया है।
सो दैट इज द पावर ऑफ पिकिंग द राइट सेट ऑफ स्टॉक। दूसरा जो एक स्टॉक है जो अभी तक होल्ड कर रहा है वो है रिलायंस। रिलायंस 2250 2300, इसमें जो है बाइंग बहुत पहले से रिकमेंड कर चुका हूँ। बहुत लोगों ने मल्टीपल शॉर्ट्स भी यहाँ पे फायदा उठाया। लुक एट दिस 2400 बॉस, लुक एट द बॉटम, क्या बॉटम है 2243, ठीक है। लुक एट द पंप इन वॉल्यूम, फैंटास्टिक। अगेन अच्छा स्टॉक, एक स्टॉक जिसमें मैंने कहा था कि हेड एंड शोल्डर पहले टूटेगा और तब ये बढ़ेगा, तो हमारे मिस्टर HDFC बैंक, जिनको अभी भी हम इसको बाई साइड में रखे हुए हैं, एंड लुक एट द सिंपल प्रिडिक्शन दैट इज कमिंग ट्रू, हेड एंड शोल्डर ब्रीच, एंड नाउ आई एम वेरी क्यूरियस एज टू व्हाट विल हैपन। तो 1300 का हमारा स्टॉप लॉस है। ये एकदम इन्वेस्टमेंट ही ट्रेड है। हर बार मैंने कहा है कि इसे हम 1300 के स्टॉप लॉस से 1400 से लेके 1500 के बीच में बाय करेंगे, and only target will be 1840, which is the new all time high. So that view still stands correct, and अगर 1300 hit होगा तो I will accept the stop loss gracefully, ठीक है। So I think there are a couple of more stocks, I'm forgetting the name because I've been speaking for long time, but कुछ हैं, 4-5 स्टॉक अच्छे चले हैं, ठीक है। ओके, किसने सुपर चैट किया है तो सबसे पहले धन्यवाद श्री श्री राहुल ठक्कर जी का। क्रूड ऑयल के लिए थैंक यू, एब्सोल्युटली अमेजिंग, यस क्रूड ऑयल शानदार। ओके, सन माइंस स्पैम मत करिए, नहीं तो आप ब्लॉक हो जाओगे। आई कैन सी ओनली 2-3 queries, so I will take these couple of stocks and then I will wind up. So Oro Pharma, again bearish counter है दोस्त, गलत जगह फंसे हुए हो, ठीक है। सो अभी इसमें कोई भी ट्रेड नहीं है, कई महीनों से बोल रहा हूँ। कोल इंडिया की बात करें तो अगेन स्पाइक अप हो चुका है, शानदार स्टॉक है ये, गुड डिविडेंड एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड विद एनर्जी क्राइसिस आई थिंक कोल इंडिया के पास एक एज है। दोस्तों एक और चीज जो मैंने कहा था जो कि करेक्ट हो रही है वो है LIC का IPO। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपसे कहा था, स्पेशली ग्रुप मेंबर्स को मैंने कहा था कि मुझे बहुत ही हाई कन्विक्शन है कि इट विल नॉट सी द लाइट ऑफ द डे। आई थिंक वो चीज सही हो गई है बिकॉज ऑफ वॉर और वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, बट दैट प्रिडिक्शन हैज कम ट्रू दैट LIC is not happening, and trust me, it is a very good thing that it is not happening. सो कोल इंडिया 185, व्हाट अ बम्पर रैली। मैं समझता हूँ स्टॉक को होल्ड करो 216 के लिए, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेयर इज योर कॉस्ट। अगर आज बाय किया है तब फटाफट ट्रेलिंग डाल के भागो, अगर नीचे कहीं है तो डेफिनेटली होल्ड करिए। 216 जो है टारगेट है, एंड आई थिंक ये वेरी क्विकली इट शुड कम, मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। एक मैसेज है कि निफ्टी 50 में कुछ 6950 का कॉल लिए हैं, लॉस है तो भाई क्या करोगे, ठीक से ट्रेड करो ना, सीखो कैसे ट्रेड करते हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 3200-3300 का जो स्लैब है दैट इज द इन्वेस्टर काउंटर, 3400 अभी दिख रहा है, तो यहाँ पे यू कैन बाय। फॉलोइंग वेल स्ट्रक्चर है, आई लाइक दिस स्ट्रक्चर वेरी मच, तो आप जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत आप इसे डेफिनेटली ट्राई टू एक्यूमुलेट हियर, ठीक है। 32-3300 ऑल दीज आर गुड लेवल्स टू बाय इन्वेस्टमेंट के लिए, ये बहुत ही शानदार है, ओके। एंड नेक्स्ट राउंड में यू कैन एक्सपेक्ट 3800-4000 लेवल। UPL की बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छा काउंटर था, बीच में इसमें क्रैक हो गया, सो इसे इस समय मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मैं समय दूंगा, हालांकि मुझे अभी भी इस पर काफ़ी कॉन्फिडेंस है, बट आई वुड लाइक टू सी दिस स्टॉक डूइंग समथिंग एंड देन प्रॉब्ली फ्रेश एक हम रिवाइव करेंगे। फिलहाल अगर आपने बाय किया है देन आई थिंक इट कैन गो 745, ओके, ओवर देयर ट्राई टू एग्जिट वंस, ओके। इफ यू आर स्टक एट हायर लेवल्स तो भी एग्जिट हो जाएगा, अगर पैनिक में थोड़ा मिल गया था तो प्रॉफिट के साथ भी हो जाएगा। सो आई थिंक 745 पे एक एग्जिट करना बहुत ही वाजिब है, उसके बाद हम देखेंगे सिचुएशंस को और फिर हम वापस से इसमें एंट्री लेंगे, क्योंकि ये स्टॉक अगर ये चल पड़ा इन नियर फ्यूचर तो मान के चलिए कि ये कम से कम 50% की रैली करेगा, ठीक है, कम से कम 50% की रैली करेगा। चार्ट पूरी तरीके से तैयार है।
टाटा मोटर्स, सी टाटा मोटर्स 620 टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, तो आपको बाय करना है तो अच्छी एक करेक्शन हो चुकी है, कैपिचुलेशन लेवल वगैरह भी देखने को मिला है, सो यू कैन बाय इन द नेक्स्ट राउंड प्रॉब्ली। ओके, इन द नेक्स्ट राउंड अगेन सी फॉर द टाइमिंग ये थोड़ा ऊपर जाएगा 480 85, एंड आई थिंक एक और बार ये शायद नीचे गिरेगा, तो अगर दूसरी बार आता है तो लेना, ऊपर में मत फंसना, ठीक है, ऊपर में ना फंसे तो ही अच्छा होगा। कोटक बैंक, नेक्स्ट क्वेरी इज कोटक बैंक। सो कोटक बैंक जो है रिलेटिवली अपने आप को होल्ड किया है एचडीएफसी के मुकाबले, सो आई थिंक इफ एचडीएफसी स्टार्ट्स टू रन देन कोटक विल अंडरगो करेक्शन। स्टॉक में कुछ खास देखो कुछ है नहीं, और मैं अभी भी इसमें एक ही चीज कहूंगा जो पहले मैंने कहा था कि मुझे ये स्टॉक 1700 के भाव पे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, आई लाइक दिस स्टॉक, बट थोड़ा सा भी समय है इसमें, ठीक है। सो अर्निंग्स के पहले, अर्निंग्स आएगा 15 अप्रैल के आसपास, सो समवेयर एट 1700 आई वुड लाइक टू बाय दिस स्टॉक विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1550, 150 पॉइंट का कैश में स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 2400 या कम से कम 2200 2300 का टारगेट में लेके चलूंगा। सो आई एम लुकिंग एट दिस चार्ट इन फॉर्म ऑफ अ एक्सपेंडिंग स्विंग्स, कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सपेंशन हो रहा है स्विंग्स का, तो अगर ये इंटैक्ट है तो 2400 की चाल आनी चाहिए। अब यदि ये चाल आना है तो कोई भी बड़ी चाल आने के पहले सारे वीक हैंड्स को वॉश आउट किया जाएगा, यानी सारे सपोर्ट्स को ब्रेक किया जाएगा इस तरीके से, सो दैट इज व्हाई आई एम ऑन होल्ड, ठीक है, ये मेरा व्यू है। मारुति, बहुत ही बढ़िया क्वेरी, मैं वेट ही कर रहा था कि कोई मारुति के बारे में पूछे, क्योंकि मारुति सुजुकी जब सारे यूट्यूबर 9000 पे लॉन्ग करा रहे थे तो आपको मैंने क्लियर कट कह दिया था दोस्तों, इस चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर देख लो, ये शोल्डर हेड, ये शोल्डर, एंड वेट फॉर करेक्शन टू हैपन। नाउ मारुति, आई थिंक अगर ये आपको 7500 7600 पे दिखाई दे तो लैप अप कर लेना, ठीक है, समवेयर हियर, यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज भी है, सो यहाँ पे अगला लास्ट ब्रेकआउट रीटेस्ट भी हो जाएगा, सो ये बेहतरीन जगह है। सो 7500 पे ट्राई टू लैप अप, 76 मिलता है तो थोड़े शेयर्स खरीदे, 75 मिला तो थोड़ा एवरेज कर लो, ये पूरा जो जोन है 73 टू 76, ये 300 पॉइंट, इट्स अ बाइंग जोन, ठीक है, इट्स अ बाइंग जोन। सो इस पूरे स्लैब में थोड़े थोड़े शेयर्स जो है इसे एक्यूमुलेट करिए, एंड नेक्स्ट राउंड में बहुत हाइयर टारगेट्स हैं, समय लग सकता है, ऐसा नहीं है कि बाय करते ही सारी चीज़ें भागेंगी, बिकॉज जियो पॉलिटिकल कंडीशंस, ट्रस्ट मी, many people are discounting it, they don't know what is coming, so थोड़ा सा केयरफुल रहें। टाटा स्टील, सॉलिड, जबरदस्त, गजब, टाटा स्टील बॉस, टाटा स्टील देखो 1050 से कहाँ पे आ चुका है बंदा, 1260 को भी क्रॉस कर चुका है, 1260 की रेजिस्टेंस टूट चुकी है, लुक एट द पंप इन वॉल्यूम, हाउ द बॉटम वाज मेड इन एक्सपेंडिंग मैनर। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि पूरा वॉश एंड रिंस हो चुका है, पब्लिक के हाथ में एक भी स्टॉक नहीं है, और ये स्टॉक जो है बहुत ही न्यू हाई की तरफ जाने वाला है, बहुत ही स्पीड के साथ, ठीक है। सो आई थिंक पहला पड़ाव जो है 1370 के स्लैब में, 1400 के स्लैब में यहाँ पे है, तो टेक्निकल ट्रेडर्स यहाँ पे जो है डेफिनेटली एक बार बुक करें। उसके बाद कोई भी रीटेस्ट आता है 1200 के स्लैब में तो उसे वापस से बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा इसमें वैसे, तो इस बात का ध्यान दें, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट राउंड में न्यू हाई। सो यही व्यू है टाटा स्टील का, हाईली बुलिश हूँ मैं टाटा स्टील पे, एंड वन मोर स्टील में, लेट मी शो द बिगर पिक्चर फर्स्ट, उसके बाद बात करेंगे। सो टाटा स्टील अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, दैट 1350 1400 लेवल, बट व्हाट इज द अपसाइड स्कोप, बॉस अपसाइड स्कोप टाटा स्टील का है 2000 तक का, ठीक है, 2000 तक का। तो अब ये जो बॉटम बना है ना 1050 वाला, ये आप बस इस पे ध्यान दो, अब टारगेट छोड़ दो, ठीक है, फोकस करो इस पे, ये अब टूटना नहीं चाहिए, अगर ये टूटा तो खेल खत्म, दिस इज अ बुल मार्केट टॉप फॉर टाटा स्टील, एंड वी विल सी एटलीस्ट 640 तक का करेक्शन। So till this is holding up, the bull is still alive in Tata Steel, and because metals they were consolidating
they have corrected since so many months. This should be a leading counter, a leading sector in the current situation. So if I scale up, it comes to 2000. ठीक है, so इसलिए इस पे ध्यान दे। गिरावट वगैरह पे अगर आता है तो इसे डेफिनेटली यहाँ पे लेना चाहिए, बिकॉज इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है और सिचुएशन अच्छी है इस स्टॉक के लिए इस समय। ठीक है, now see, let me tell you one thing, how the stock market works in a bull market. In a bull market, uh, the stocks that starts to show leadership qualities, they will not give you a buying opportunity. यही इनकी निशानी होती है। ठीक है, तो अब ये जो बंदे हैं अपने हिंडाल्को, टाटा स्टील एक्सेट्रा, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि 4-5 दिन में ही अगर ये न्यू हाई ना बनाते। ठीक है, हो सकता है 4-5 दिन में टाटा स्टील आपको 1650 पे दिखाई दे, ये चांस ही नहीं देंगे आपको बाय करने का, तभी तो लीडरशिप स्टॉक है। अंडरस्टैंडिंग? हिंडाल्को ऑलरेडी मेरा टारगेट हिट हो चुका है, सो हिंडाल्को स्टिल बुलिश एंड हिंडाल्को 590 टारगेट इज हिट। नेक्स्ट टारगेट जो है 640 का होगा। And these stocks, they are high flying stocks. So one thing, please make sure that you are not the one who is buying at the higher levels. ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। टीसीएस, टीसीएस वगैरह में कौन खेलता है? टीसीएस एंड ऑल गॉन यार, ये सब स्टॉक्स को भी छोड़ दो। ठीक है, लेवल अच्छा है, ठीक है, बट ओके, अगर आपने लॉन्ग किया है तो आप स्टॉप लॉस लगाइए एंड होप फॉर द बेस्ट, मे बी फ्यू हंड्रेड पॉइंट इट कैन स्केल अप, बट मजा नहीं है। ठीक है, क्लीन साइंस, ओके दोस्तों, लाइक का बटन दब नहीं रहा है। क्लीन साइंस जो है इस समय, अगेन दीज आर ऑल डेड काउंटर्स जस्ट हैविंग देयर मोमेंट ऑफ लाइफ, तो आई थिंक ये 22 तो जा सकता है, बट अगर आप पहले निकल नहीं पाए थे तो ट्राई टू एग्जिट एंड वेट फॉर द मार्केट्स टू यू नो become better, and then you can look to long again. ONGC, I don't see any queries. I think I should wind up. ONGC, ठीक है, ONGC बुलिश है, अगर बाय करना है तो तुरंत इसको लैप अप कर सकते हैं 160 पे। स्टॉप लॉस होगा 149 या 150 का, टारगेट होगा 210 रुपए। ठीक है, अगली क्वेरी है मैस्टैक पे। आईटी स्टॉक, आई एम नॉट बुलिश। सो आईटी स्टॉक में पिछले कई हफ्तों से मैं बेरिश हूँ। फिलहाल ये स्टॉक एक सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले कर सकता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड दोस्त। अगर ये स्टॉक थोड़ा भी ऊपर जाए तो इसमें से निकल जाइए, कुछ है नहीं इसमें। एनएमडीसी, एनएमडीसी एक अच्छा काउंटर था। 125 का लेवल आपको याद होगा, पिछले 6 महीने से मैं बता रहा हूँ आपको कि 125 ये नहीं तोड़ेगा। क्यों नहीं तोड़ेगा वो मैं नहीं बताऊंगा, 125 ये नहीं तोड़ेगा। और अब 171 इस बार इससे जाना चाहिए। लास्ट टाइम भी इट केम वेरी क्लोज 161, बट देन दिस वॉर एंड ऑल दीज थिंग्स अराउंड। सो एनएमडीसी अगेन वेरी नाइस। देयर वाज वन मोर स्टॉक, हिंदुस्तान कॉपर और हिंद कॉपर। लेट मी जस्ट ओपन दिस स्टॉक। सो इफ यू रिमेंबर, इसमें भी हम काफ़ी बुलिश थे और इस पर भी ब्रॉडली स्पीकिंग यही बात हुई थी कि 100 वगैरह जो है 110 100 दीज आर गुड लेवल। सो अगर इसको भी बाय करना है तो आप कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि अब 100 रुपये लास्ट स्टॉप लॉस है। अगर ये चलना है तो तुरंत भागना शुरू करेगा, नहीं तो अगर ये टूटा तो फिर इसमें कोई भी ट्रेड नहीं होल्ड करना है। ओके, बिकॉज अगर कोई चार्ट बहुत स्ट्रांग होता है then it must produce the result. If it is not producing result, that means it is going to crack badly. ठीक है, नेक्स्ट है विप्रो। अगेन दीज आईटी पैक, आईटी पे मैं कब से बोल चुका हूं कि कोई भी इसमें मुझे बुलिश में इंटरेस्ट नहीं है, सो नथिंग। विप्रो का टेक्निकल चार्ट जो है ना, ये काफी अच्छा है इस समय। Okay, I like the technical chart. So is there any trade? See, as such कोई trade मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। Maybe if you get lucky it can spike up, but nothing, कुछ खास नहीं है right now. See, this is what happens in stock market. Public जो है IT में फंस चुकी है और रैली होगी आपके metals में। Last stock for tonight, जिंदल स्टील एक बार चेक करते हैं, क्योंकि
Finally, after a long time, these स्टील मेटल स्टॉक्स दे आर ब्रेकिंग आउट, सो फैंटास्टिक। बहुत ही शानदार है ये। अगर आपने इसे नीचे बाई किया तो डेफिनेटली होल्ड करिए। मैं तो ये कहूँगा कि 340 अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो होल्ड विद 340, एंड यू विल सी these stocks cracking a lot higher. 550 and all these levels should come on these counters. Okay, so काफी बढ़िया इनका चार्ट है। बर्नपुर, बर्नपुर सीमेंट, सी ग्रासिम, एसीसी, अल्ट्राटेक, द सीमेंट नेम्स ये तो ठीक है, बट ये जो आपने जो स्टॉक लिया है दोस्त, ये मुझे बहुत ही बकवास लग रहा है। ये जो 6 रुपए के स्टॉक के लिए 6,000 का टाइम आपने बर्बाद कर दिया मेरा। पावर ग्रिड, ऐसे स्टॉक्स को हम ट्रेड नहीं करते। पावर ग्रिड जो है, अगेन एनर्जी थीम है, द थीम इज एनर्जी। सो आई थिंक राइट नाउ अगर आपने नीचे बाई किया है तो ठीक है। सम न्यू हाई कैन कम, एक न्यू हाई आ सकता है, प्रॉफिट बुक करना। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, पॉलीकैप, टेस्टी बाइट, सी जेएसडब्ल्यू स्टील में बहुत अच्छा एक फ्लश हो चुका है। इस स्टॉक के बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगा। नंबर वन, दिस स्टॉक शुड डू समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस स्टॉक शुड डू समथिंग लाइक दिस, 700, प्रॉब्ली 650, एंड देन ऐसे। ठीक है, ये होना चाहिए स्टॉक में। नेक्स्ट है आईजीएल। आईजीएल में लॉन्ग टर्म मैं बताता हूँ कि जब तक 520 के नीचे है कुछ नहीं हो सकता। ये आखिरी लेवल था, एंड सिंस देन इट हैज कोलैप्स्ड बाय 50%। सो इस स्टॉक में अभी समय नहीं है, इसमें मत अभी डालिए। फाइन ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। Okay, so stock is already defying the gravity and all these things, and stock is already trading higher. I think there must be some fundamental news or some fundamental theme is going on. So I think you should do trailing, क्योंकि ये आउट परफॉर्मर है, तो आपको 3,500 से ट्रेल करना चाहिए। नेक्स्ट है सेल। देखो सेल जो है, इसमें कोई जान नहीं है, एंड अगेन डेथ क्रॉस हैपनिंग, बट आई थिंक उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक सेल जैसा लास्ट टाइम बताया था, 124 जब तक क्रॉस नहीं करता ये इसी डाउन ट्रेंडिंग चैनल में रहेगा। नथिंग मच, नथिंग मच। एक आखिरी क्वेरी हम लेते हैं, मे बी एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स लेते हैं। सो एशियन पेंट्स इस समय एक अच्छे सपोर्ट पे है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है चीजें। इसमें मैं एक चीज आपको ये कह सकता हूँ कि देखो, अगर आपको वैल्यू बाय करना है तो आप बाय कर लो, और 2857 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, यही एक चीज इस समय इसमें कही जा सकती है कि बाय कर लो, 2857 का स्टॉप लॉस होगा। या फिर अगर परफेक्ट ट्रेड चाहिए तो आप रुकिए, इसे बढ़ने दीजिए, एंड अगेन इस करेक्शन पे फिर हम बाय करेंगे विद दिस एज अ स्टॉप लॉस फॉर नेक्स्ट रैली टुवर्ड्स से 3800 एंड ऑल दोस लेवल्स। ठीक है, सो दैट्स इट। चलिए, सो सेशन को अभी समाप्त करेंगे। 1 घंटे का पूरा लाइव स्ट्रीम जो है दोस्तों हो चुका है। अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, की नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है दैट इज scheduled फॉर दिस वीकेंड, सो यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन रजिस्टर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो सेशन। टेक केयर, गुड नाइट, जय माता दी।